है बॉन्डर इंडिया टीवी। जर्मनी में ऐसा क्या हुआ कि मीरा भाईंदर में आज भारत की बेटी बचाओ का यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जहाँ पे मीरा भाईंदर के कई सारी पार्टी के पदाधिकारी या इस रैली में शामिल हुए। मैं बता दूं कि मीरा भाईंदर के आमदार गीता जैन मैम और पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता, ऐसे कई सारे नगर सेवक व पदाधिकारी और आम जनता इस रैली में शामिल हुआ और सबका एक ही नारा था कि अरिया को भारत वापस लाओ, भारत की बेटी है, भारत में वापस लाओ। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए बात करते हैं। यहाँ पे आवेल અરિયાને પાછા લાવશું। તમને એક વિનંતી કરું કે જર્મન કોન્સ્યુલેટે છેલ્લે તમને શું જવાબ આપ્યો છે, જો એ કહી શકો તો આગળ જરૂર વાત થાય। તમારો અવાજ નથી આવતો। હેલો, હવે સંભળાઈ રહ્યું છે? હા હા, અમને હમણાં તો એક તો આપ સર્વેનો સાધુ ભગવંતો સાધ્વીજીઓ મહાસંતો જેટલા પણ ઉપસ્થિત છે બધાનો કોટી કોટી વંદન। અને આપ સૌએ આજે અરિયાને અમારી દીકરી નહીં પણ આપ સૌની દીકરી બનાવી એમના માટે ઊભા છો, અવાજ કર્યો છે, શબ્દ નથી। થેન્ક યુ। એસેસમેન્ટ થશે અને જ્યાર સુધી સાયકોલોજીકલ એસેસમેન્ટ નહીં થશે ત્યાર સુધી કસ્ટડીનો જે ડિસિઝન છે એ હોલ્ડ પર રહેશે અને ત્યાર સુધી બાળકને ફોસ્ટરમાં રાખવામાં આવશે। એટલે અમે લોકો ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ પાસેથી એ જ ક્યારની માંગ કરી રહ્યા છે કે અમે આ બધા પ્રોસેસ કોર્ટનો મેટર છે અને કેટલો સમય લાગશે અમને નથી ખબર। એટલે અમે એ જ વિનંતી છે કે લાઈક એ દરમિયાન અમારી બાળકને જેવી રીતના પહેલાં ભારત સરકારે સુષ્મા સ્વરાજ મેમે મળીને કે યુએસથી નોર્વેથી બાળકોને ઇન્ડિયા પરત લાવવામાં આવ્યા છે અને એમના એક્સટેન્ડેડ ફેમિલીને આપવામાં આવ્યા છે। અમે એ જ માંગ કરી રહ્યા છે કેમ કે આને હજુ આ 10 મહિનાથી અમે લોકોને સાયકોલોજીકલ રિપોર્ટ બનાવવા કીધું હતું। 10 મહિનાના અંદર એ લોકોએ ખાલી અમારા પાસે 10 કલાક વાતચીત કરી છે। એ ચીજને તો જોઈને એમ લાગે છે એ લોકો જાણી જોઈને લાંબો સમય ખેંચી રહ્યા છે કેમ કે જર્મનીમાં એક લો છે જેને કન્ટિન્યુટીનો લો કહેવાય છે અને કન્ટિન્યુટીના પ્રિન્સિપલના હિસાબથી અગર બાળક વધારે સમય સુધી ફોસ્ટરમાં રહે અને મા બાપથી દૂર રહે તો એને ફોસ્ટરમાં જ રાખવામાં આવશે, એને પાછું ના અમને આપવામાં આવે ના એને ઇન્ડિયા મોકલવામાં આવશે। એટલે અમે લોકોને એક જ વિનંતી છે કે આને લાંબો સમય લાગે છે ત્યાર સુધી અમે લોકો અમારી છોકરીને એટલીસ્ટ કોઈ એક્સટેન્ડેડ ફેમિલીમાં કોઈ જૈન પરિવારમાં આપવામાં આવે જ્યાર સુધી અમે લોકો આ બધી ચીજ ક્લિયર કરી રહ્યા છે। અગર અમે કંઈ ખોટું કર્યું તો અમે ડૉક્ટર પાસે જ નહીં લઈ જઈએ સૌથી પહેલાં તો। બીજી વસ્તુ અમે પબ્લિકમાં આવીને આ બધી માંગ નહીં કરીએ। અમારા ઉપર ક્રિમિનલ કેસ જે લગાવેલો હતો એ લોકોએ જે લગાવવાની કોશિશ કરી એ પણ બંધ થઈ ગયો છે। હવે ખાલી સિવિલ કસ્ટડી કેસ ચાલુ રહ્યો છે અને એ જાન્યુઆરીથી હજુ સુધી ઓક્ટોબર ચાલુ થઈ ગયું ને હજુ એ સાયકોલોજીકલ એસેસમેન્ટ પૂરો નથી થયો। કોઈ સાયકોલોજીકલ એસેસમેન્ટને આટલો સમય કયા હિસાબે લાગી શકે છે? અને ફોસ્ટર વાઇફ પણ બેબી માટે સારી નથી। ફોસ્ટરના અંદર ફોસ્ટર ઇન્ડિયન બેબી માટે નહીં, જર્મન્સ બેબી માટે પણ સારી નથી। અને અમે લોકોને કેટલા બધા જર્મન્સ લોકોએ કનેક્ટ કર્યું, એ લોકોએ કીધું ફોસ્ટર લાઈફ સારી નથી। અમારા પાસેથી ખાલી રાઇટ ઓફ રેસિડન્સ લેવામાં આવ્યો છે। અમને કીધું છે કે લાઈક એ કયું ખાણીપીણીમાં રહે, કયા કલ્ચરમાં રહે, કયા રિલિજનમાં રહે, એ બધા રાઇટ્સ અમારા પાસે છે। અને જ્યારે અમે લોકો એ ચીજ એ લોકોને એક્સપ્લેન કરે તમે અમારી છોકરીને આવી રીતના રાખો તો અમે લોકોને એ બોલવામાં આવે છે કે લાઈક અમારા પાસેથી પૂરી કસ્ટડી લઈ લેશું કેમ કે તમે આ બધી ડિમાન્ડ કરો છો। પણ એ હરિયાના અધિકાર છે, અમે લોકો હરિયાના માટે હમણાં લડી રહ્યા છે। અમારા પાસે કસ્ટડી માટે અમે લોકો પછી લડત ચાલુ રાખશું। પહેલા અમે લોકો અમારા છોકરીના અધિકાર માટે લડી રહ્યા છે જે એના હક છે। એ એક ઇન્ડિયન કલ્ચર, ઇન્ડિયન સંસ્કૃતિની બાળક છે, ઇન્ડિયન બેબી છે, જૈન બાળક છે, એને એના કલ્ચરમાં એના રિલિજનમાં રહેવાનો એનો અધિકાર છે। આંતરરાષ્ટ્રીય એટલે ઇન્ટરનેશનલ કાનૂન પણ એ જ કહે છે કે અગર ટેમ્પરરી કે પરમાનન્ટલી મા બાપ પાસેથી બાળકને લેવામાં આવે તો એને એના એક્સટેન્ડેડ ફેમિલીમાં રાખવામાં આવે, એને એના કલ્ચરમાં રાખવામાં આવે, સંસ્કૃતિ, રિલિજન, ભાષા અને એ બધી ચીજમાં રાખવામાં આવે। અમે એ જ માંગ કરી रहे हैं। देखिए, अरिया एक 1.25 साल की बच्ची है जिनको आज से 1 साल पहले मतलब जब वो 9 महीने की थी उनके माता पिता से अलग कर दिया गया। उन्हें कुछ चोट लगी थी और जर्मनी के कायदे के अंतर्गत उन्होंने फॉस्टर हाउस में रखा गया है जो कि गलत है और इसके लिए उसके माता पिता जर्मनी में कई महीनों से प्रयास करें लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए इसके अंदर सरकार का हस्तक्षेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार तक ये बात पहुंचाना और सरकार इस बात को गंभीरता से ले, इसलिए अलग अलग जगह में देश में रैलियाँ निकाली जा रही है।
मैं भी इस रैली का समर्थन करता हूँ, इनके साथ में हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अरिया देश में वापस आए। इसलिए हमारे केंद्रीय मंत्री हो, उनसे बात पहुँचा के इसमें क्या न्याय मिल सकता है वो न्याय के मिले, ऐसी कामना करता हूँ और मैं इसकी शुरुआत आज से करता हूँ। सब मिलके प्रयत्न करेंगे कि अरिया जल्दी से जल्दी भारत आ जाए। मेरी तो ये दिल से यही इच्छा है कि अरिया उनके माँ बाप के साथ रहे, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को माँ बाप के साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उसके अलावा एक ऑप्शन जो अभी मैंने बात निकाली तो ये है कि कोई भी भारतीय फैमिली के साथ भी उसको जब तक कोर्ट केस ख़त्म नहीं होता है, सिविल कोर्ट केस, तब तक बाय लॉ रखा जा सकता है। और इसके लिए हमारी इंडियन जर्मन कंसुलेट ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक लेटर देना है कि यस हमारे पास वो कानून है जिससे बच्चा भारत आ सकता है, तो वो कानून का अप्लाई करके वो जल्दी से जल्दी भारत उनके दादा दादी या नाना नानी या कोई भी अदर रिलेटिव के पास रहे, उसके लिए अभी से आज से हमारे प्रयत्न शुरू। वहाँ का जो कोर्ट है, इनका कोर्ट का केस जो चल रहा है उसके वजह से डिले हो रहा है और काफ़ी जो पेपर वर्क है और कम्युनिकेशन गैप है, इसी कारण से ये डिफ़िकल्टीज वो पेरेंट्स को हो रही है और वो अपने बच्ची से दूर है। जैसे उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो कस्टडी है अगर एक एक्सटेंडेड इंडियन फैमिली को या उनके रिलेटिव्स को मिले वो उससे भी ओके, तो आई फील कि इस चीज़ों को स्पीड अप करना चाहिए। भारत की बेटी जो जर्मन कॉन्सुलेट की लेट लतीफ़ी ढील ढाले रवैये की वजह से पिछले 8 महीनों से वहाँ पर जेल में बंद है, उसको भारत लाने के लिए हम सरकार से जो उसके पेपर वर्क में जो कम्युनिकेशन जो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, वो जो चैनल पूरी तरह से जो वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट के जो अधिकारी वहाँ पर इस केस की जो सीरियसनेस को लेके वहाँ पे जो काम नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार से यहाँ पर हम उनको अनुरोध करेंगे, यहाँ पर उनके ऊपर हम ये सारी चीज़ों को मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें थोड़ा सा इस कार्य को त्वरित गति से करके वहाँ के जो इंडियन कॉन्सुलेट के अधिकारी है जो कि वहाँ पे जर्मन कॉन्सुलेट के साथ कम्युनिकेशन में जो लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी काम को पूरा कर जल्दी से जल्दी इस भारत की बेटी को। आज मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अरिया को जर्मन से लाने के लिए मैं भी कल पत्र व्यवहार करूंगा पीएमओ में, और इनके लिए जो आज जो शांतिप्रिय रैली निकाली गई जन कल्याण मित्र मंडल, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक आगे आके उन्होंने लोगों को जागरूक किया, और जागरूक होने की वजह से आज मीरा भाईंदर में स्वामीनारायण संस्था हो या जैन मित्र कल्याण, सभी लोगों ने आज हज़ारों की संख्या में आज शांतिप्रिय रैली निकाली। उसमें मुझे भी मौका मिला शामिल होने का, और मेरा प्रयास रहेगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रयास नहीं पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में अरिया भारत जरूर आएगी, क्योंकि वो अभी धारा जी की बेटी नहीं, पूरे भारत की बेटी है, वो हिंदुस्तान जरूर रिटर्न आएगी। हम एक आम नागरिक हैं, हमने पब्लिक को जगाया है और ये पब्लिक की आवाज़ नरेंद्र मोदी जी तक जाएगी, और ये हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है कि वो अरिया को कितने जल्दी भारत लाएंगे। तब तक नहीं रुकेगी जब तक अरिया भारत नहीं आएगी। इस रैली में किसी ने कोई पॉलिटिकल चिन्ह नहीं देखा, किसी ने ये नहीं देखा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे संस्था, सारे मंडल, बच्चे, हज़ारों संख्या में लोग आए, इतने संख्या में बच्चे आए, पाठशाला के बच्चे आए, सबने अपना योगदान दिया, परिवार आए, अभी तक बैठे लोगों ने इतना, मतलब इसके लिए लोग इतना आगे आए कि अभी ये रैली, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है जब तक अरिया भारत वापस नहीं आए। जर्मनी से भारत लाने के लिए आज जैन समाज के अनेक संस्थाओं द्वारा जो ये रैली निकाली गई, मैं इसके लिए सबसे पहले इसमें शामिल हुए सभी जो भी युवा है, सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी लोगों का, सभी धर्मगुरुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इस आंदोलन के माध्यम से हो रहा है, जो कि यहाँ बताया गया कि गुजरात में आंदोलन हुआ, भुज में आंदोलन हुआ, अहमदाबाद में हुआ, मुंबई में हुआ। आज यहाँ मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम लोग आए हुए, और हमारी भी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्री जी से यही मांग है कि अरिया को जल्द से जल्द जर्मनी से भारत लाया जाए।